बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। ओम तत्सत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राधे 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 राधे। एक बार फिर से जोर से राधे राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज आप सबको प्रेम भरा अभिनंदन है, स्वागत है, आत्म प्रणाम आप सबको। खूब अच्छा लगता है आप सबको मिलके। आज 5वां दिन है, 5th डे। So very soon will be सप्ताह 7 days will be over, or 7 nights, whatever, however we take it. It's so beautiful to see each one of you and all of you online. Welcome each one of you. Abhinandan hai. Heartfelt divine love, light, healing, bliss, prosperity. May each one of you have expansion of energy, expansion of divine energy, expansion of divine love, healing, bliss, prosperity, and lots of auspiciousness after you listen to all 7 days of Srimad Bhagavad Mahapuran Katha. A rare jewel, Pancham Veda Nirala. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Let's ground ourselves. Grounding is very important. कभी भी अपना भी घर के जब हम पूजा करते हैं बैठ के स्थान पर, जहाँ भी थोड़ा सा जल छोड़िए, पवित्रम कीजिए। शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, न्यास करना बहुत जरूरी है अपने आप को। शायद स्नान नहीं किया वो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब करना जरूरी है। और धरती माँ को धन्यवाद देके और अपने आप को स्थिरता देके, मन को स्थिरता देके, इसीलिए हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन्स आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ये यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। हम दिस इज माई अपॉइंटमेंट विथ यू माई लॉर्ड, प्लीज प्रोटेक्ट मी, गाइड मी and be with me, do not leave me 24/7. So that way काम तो करना है, मुख में राम नाम, हाथ में काम, नाम जप करती रहिए, नाम स्मरण करते रहिए और काम भी करते रहिए। वो तो दुनिया में करना ही पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको अपने आप को सावधान करके कि no other thoughts, दूध उबल रहा है, भोजन जल रहा है, अभी फ्रिज सफा करना या वो देर हो रहा है, जॉब पे जाने का, बस मिस हो जाएगा, तो वो सब छोड़ के उस समय क्वालिटी, ओके, क्वांटिटी डजंट मैटर। डोंट से आई डिडंट सिट फॉर 1 hour, इवन एट दैट टाइम 5 minutes, 6 minutes, 15 minutes is enough, but it has to be quality with deep concentration. Let's begin with 3 ohms because we have already grounded ourselves. No other thoughts. Shoes outside, so your monkey mind also outside. No monkey mind. And एक बात और मैं शुरू करने से पहले बोल देती, मैं क्षमा चाहती हूँ। कल थोड़ा देर हुआ था और उसके लिए मुझे थोड़ा तकलीफ भी हुआ। I didn't feel good about it, but I wanted the benefit of all of you so that you can get the rounded up story. And yesterday we did puja with Pandit ji, and after that we did Hanuman Chalisa. So we ended up taking more time that side. So Katha ended up a little. So once more, sorry, थोड़ा ज़्यादा आपका समय लिया, लेकिन हमारा भाव अच्छा है because we want you to get quality product. So आज हम कोशिश करेंगे एकदम समय पे काम करने को। Let's begin with 3 ohms.
चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। Adorations to the Divine Preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru, we offer our adorations. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of Pujya Gurudev, Pujya Sri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Yoga Research Foundation, Miami, Florida. To our Param Gurudev, our Gurudev's Gurudev, Pujya Sri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. To our Jagat Guru, our world teacher, Bhagwan Adi Shankaracharya Ji, our humble Sashtang pranams. Now pranams to Bhagwan Shukdev Ji, Bhagwan Vedvyas Ji, our humble Sashtang pranams. Pranams to all saints and sages of the entire world. Koti pranam. Gurudev's message for today: Blessed Self, adorations. Live a balanced and rhythmic life. We try our best, right? Live a balanced and rhythmic life. Just think about it. So everything you hear, listen carefully, contemplate on it, meditate on it, and then, how many of you remember what's the next one? And it's my slogan. Everything remind yourself to say apply in our lives. सुना, थोड़ा सा सोचा, निकाल दिया, अप्लाई नहीं किया, तो फिर the cycle is not complete. धीरे धीरे छोटा सा भी एक बात याद आ जाए, apply in your lives, then the cycle is complete. One day you forget, doesn't matter. One day you forget, okay. Next day you remembered, so then okay, I'll apply in my life. So that's what it means.
balanced life in every way, work, home, family, and don't forget the spiritual side of you. सब कुछ करते करते पूजा का समय नहीं मिला, सब कुछ लास्ट है, पूजा लास्ट है, तो ये नहीं अच्छा. पूजा first, God one first, and then everything else, and the number becomes higher. So that balanced plus rhythmic, that means every day. Little time, 15 minutes, 10 minutes. अगर उतना भी शुरू किया धीरे 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 धीरे, फिर समय बढ़ा दो. चाहे एक डे, one day छुट्टी है, one day you have leave, then that day you can do longer time. So that's what it means. And then plan your daily life and utilize time in such a manner that you can practice a blend. So this is the main blend of meditation, reflection, study of scriptures, loving remembrance of God. नाम स्मरण, नाम स्मरण, नाम स्मरण. राम, चाहे कृष्ण, चाहे शिव, जो भी इष्ट है, does not matter, it reaches the same. And then performance of daily duties. So everything blended, that's what it means, balanced life. And some form of selfless service of humanity. Some sort of selfless service. जैसे हमारे मंडली आते हैं, रोज कोई ना कोई आता है, दैट्स सेल्फलेस सर्विस. पैसा तो नहीं लेते हैं ना, तो जो चार्ज करते, दैट्स नॉट सेल्फलेस सर्विस. दोज हु डोंट चार्ज मनी फॉर सेविंग ड्यूरिंग पूजा, ड्यूरिंग दिस, दैट इज सेल्फलेस सर्विस. अगर कोई दक्षिणा दे दिया तो दे दिया, अगर कुछ, सो दैट्स व्हाट सेल्फलेस सर्विस मीन्स. Another main point I want you to take this home. Remember, when we say selfless service, what does that mean? Also, sorry, go ahead. निष्काम सेवा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्फलेस सर्विस. सो नेकी कर, दरिया में डाल. डोंट इवन एक्सपेक्ट अ थैंक यू. बहुत जोर से लोग इतना किया, थैंक यू भी नहीं बोला, पैसा तो छोड़ो, राइट? ऐसे सुनते हैं ना, तो वो निष्काम नहीं है. क्योंकि even though you didn't get a thank you, you didn't get money, but आपका थॉट में यहाँ आ गया. I wouldn't say बेकार हो गया, लेकिन जो मिलना था वो बहुत कम हो गया. So don't expect that. And even a thank you. अगर कोई दे दिया, जबरन दे दिया या दे दिया, ले लिया, that's it, बिना बोले. So that is selfless service. And when you pray to God, मंत्र किया, पुष्प अर्पण किया, जल अर्पण किया, भगवान को क्या कमी है, प्रभु क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, मेरा तो कुछ भी नहीं. जैसे उस दिन भजन हुआ था, तो जल भी चढ़ाए तो मीन की झूठी है, फूल भी चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए तो भंवरों के झूठा है. तो वो भजन कितना सुंदर भजन है. तो प्रभु सब कुछ आप ही का है, हम आप ही का वस्तु लेके आपको अर्पण करते, भावना दिखाने. ठीक, भावना दिखाए, लेकिन उसमें जैसे उस दिन का सत्संग था, ट्रेड ऑफ, नो ट्रेडिंग ऑफ. इफ यू ट्रेड ऑफ, देन बैलेंस, जैसे जितना पैसा बैंक में डाला उतना निकाल लिया तो क्या बचेगा, नेगेट हो गया ना. +1 -1 0 हो गया. तो उसी तरह, सेम वे, if you pray to God and say, I'm praying, Prabhu, I'm offering this, I did make this prasad, I bought these flowers, the most beautiful ones, मुझे ये चाहिए, ये कृपा कर दीजिए. वो भी जरूरी है, ये नहीं कि नहीं जरूरी. उसके उपरांत, beyond that, do your sadhana, do your prayers, do your mala, do your meditation, and do not ask for anything. Just say, प्रभु तेरी तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जो इच्छा हो प्रभु आपको अर्पण है. निष्काम भाव से, that is selfless prayer. कि जो प्रभु दे दे, चाहे दुख चाहे सुख, सुख में दुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूर्ण हो, सब कुछ. So that's what selfless means. So do also some selfless service of humanity.
Do not let time pass in vain. इतना हम कभी कभी बहुत समय गंवा देते ना, तो don't let it pass away in vain. Don't waste your time. Any day you do not remember God, any day you do not practice meditation or study some elevating scripture is lived in vain. That is why the first sentence was balanced and rhythmic. Every day, थोड़ा थोड़ा, 1 घंटा नहीं है, 15 मिनट है, 10 मिनट्स है, थोड़ा देर बैठ के पूजा के स्थान पे या अपना रूम में एक वो बना लो, बस थोड़ा देर बैठ के प्रभु 1 to 1 क्वालिटी टाइम. गीता का एक ही श्लोक पढ़ ले, एलिवेटिंग स्क्रिप्चर या रामायण का या कुछ भी जो सामने रखा एक स्पिरिचुअल बुक. Thus unfold your talents, utilize your spiritual resources. Utilize your spiritual resources and attain enlightenment. थोड़ा 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 थोड़ा. And attain enlightenment in this very life is possible. अगर इस जीवन में थोड़ा कुछ किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा. It's accumulated, it will come with you in your next birth. A much higher birth, a much higher way you will climb the ladder in the next birth. So हमारे गुरुदेव बोलते, if not this ship then another ship. But अच्छा करते चलो. May God bless you with regards. प्रेम एनोम. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. आज एकादशी है. आप सबको खूब प्रभु नारायण खूब आशीर्वाद दे. हम सब फास्टिंग, कुछ लोग फास्टिंग किए, आज स्पेशल भोजन भी है एकादशी का. भजन तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश. मात गौरा ने तुझे जन्म दियो है, 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 मात गौरा ने तुझे जन्म दियो है. शिव ने दियो उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश. कारज पूर्ण सब ही होवे, 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 कारज पूर्ण सब ही होवे. गणपति पूजो हमें, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश. मात गौरा ने तुझे जन्म दियो है, 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 मात गौरा ने तुझे जन्म दियो है. शिव ने दियो उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय
गणपति बप्पा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीर्ये। हमारा दंडवत साष्टांग प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी को, सब साधु संतों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Gurudev Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, all sages and saints, and to the divinity in every one of you present here or listening online. आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। भगवान की असीम कृपा से हम ये भागवत सप्ताह का आनंद ले रहे हैं। आज 5वां दिन है और बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि कृष्ण जन्म का भी हम इसमें आनंद लेंगे, रस लेंगे। इतना सुंदर झूला हमें सामने दिख रहा है, तो बहुत बहुत इन यजमानों का धन्यवाद है, रीना जी का, ब्रह्म जी का, इनके संपूर्ण परिवार का, और कितने लोगों का जो सहयोग है उन सब को, चाहे प्रकट हो या अप्रकट, वेदर वी नो और नॉट, सो मेनी पीपल। ये एक अकेले परिवार के बस की बात नहीं, बहुत सबकी मदद की ज़रूरत होती है। और आप सब लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत भक्त हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के, और हमें बहुत आनंद आ रहा है और हमारा आना सार्थक हुआ ऐसी जगह पर जहाँ पर इतनी भक्ति और शक्ति है। भगवान आप सबके अंदर ये भाव और बढ़ाता चला जाए, खूब भागवत हो, खूब गीता सुना जाए, सनातन धर्म खूब ऊंचा बढ़े। तो आप सबको धन्यवाद। और ये जो सुंदर सी भजन आप सुन रहे हैं, हम अभिनंदन करना चाहेंगे सोनू बेटे का। इसको हम 4 साल पहले मिले थे, तो हमने स्पेशली इनको बुलाया, लेकिन सब छोड़ के आए हैं। तो इनका भी एक छोटा सा 1 महीने का बच्चा भी हुआ है, तो तालियां हो जाएं इनके लिए। और फिर भी समय निकाल के आए हैं। जब इनको पता चला कि हम आए हैं तो इनकी पुरानी याद ताज़ा हुई, हमें भी बहुत आनंद आया। तो ये मंडली भी जो है एक विशेष आनंद देती हैं, और उसके बिना आनंद की हमें ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। तो जब भक्ति के साथ रस आता है, बहुत आनंद है। तो सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। हम अपने इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। Just to every day we summarize what we covered in the previous evening. तो कल हमने बात किया था पूरा शिव दक्ष यज्ञ, सती का होना, उसके बाद वीरभद्र का आना, और उसके बाद बकरे का सिर लगना, और उसका मिस्टिकल मीनिंग कि हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि हम उसको याद रखें। ये कहानियाँ जब हमारे जीवन में उतरने लगें, तभी समझो उसका हमें रस प्राप्त हुआ, उसका अनुभव हुआ। फिर उसके बाद स्वामी जी ने 2 कथाएं पकड़ी थी, नारद जी की, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ये जो 3 चीज़ें हैं कलयुग में बहुत रेयर हैं, वेरी रेयर। ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्लेस्ड सोल्स। कितना भगवान का कृपा है कि आपके अंदर भक्ति फूटती है। रोज़ आप ये सुनने आते हैं, और कितना पुण्य आपका होगा और कितना अभी कमा लिया होगा इसी भागवत, जो भगवान खुद साक्षात विराजमान है जिस भागवत में, उसका आनंद जब हम सब लेते हैं, कितना सुंदर बात है। और ज्ञान और वैराग्य के बिना तो मुक्ति संभव नहीं है। नॉलेज एंड डिस्पैशन दोनों। फिर गोकर्ण और धुंधकारी की छोटी सी हमने कथा भी सुनी थी। और
जस्ट नोटिस इतना ही है कि आज एकादशी पर्व भी है, जैसे स्वामी जी बोले, बहुत सुंदर दिन है और कृष्ण जन्म का भी हम आनंद लेंगे। और कल गोवर्धन पूजा रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो सिंबल्स हैं, इनको सिर्फ सिंबल्स नहीं लेना, बल्कि अपने मन और भाव से यही महसूस करना है कि हम कृष्ण के जन्म दिवस पर आए हैं। कल ये लगना है कि हम सब गोवर्धन धाम चले जाएंगे और वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। छोटे से सिंबल से हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही इसीलिए मूर्ति विग्रह किया जाता है, कृष्ण का मूर्ति, हनुमान जी का। मंदिरों में जब हम जाते हैं, मूर्ति से कनेक्ट करके भगवान तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, हम उसको अपने अंदर उतारें। और आज हम करेंगे कृष्ण लीला संवाद। ये सब कुछ जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है किनको? परीक्षित जी को। क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम we were all able to listen all these things we are discussing। जो जो कथा हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो जो भागवत में मेंशन्ड है, इसीलिए मेंशन्ड है क्योंकि प्रश्न पूछे गए, मेरा कल्याण के लिए क्या मैं करूं, मेरी उन्नति के लिए मुझे क्या। परीक्षित ने 7 दिन में सांप डसेगा और वो तो चल बसेंगे, लेकिन उस समय के अंदर वो क्या क्या करना चाहते हैं, बहुत उत्सुक हैं। ही इज वेरी एंग्शियस। अन्न जन जल नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, ऋषि बन चुके हैं, राजा हैं लेकिन ऋषि बन चुके हैं। सो दैट इज द डीपर impact। So everything is coming from his questions। और ये जो भागवत ग्रंथ हम दोनों स्वामी पढ़ते हैं, जैसे कल वो स्वामी जी श्लोक भी आपको पढ़ के बता रही थी, हम भी आपको यही बताते हैं कि जो भी हम बात करते हैं, whether we read a श्लोक or not, it is coming from the purest authentic source। अमृत की एक बूंद भी अमृत, अमृत का समुंदर भी अमृत। और जिन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए तो एक बूंद भी उतनी ही पोटेंट है, क्योंकि अमर तो हो गए। अब चाहे उसके बाद एक ग्लास पियो, ओशन पी जाओ, अमर एक बूंद से भी अमर ही हुए। तो हम ये जो श्लोकास हैं, ये बहुत सुंदर ग्रंथ हैं। 2 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हम यहाँ साथ लेके आए हैं। और इसके अंदर क्या है? संस्कृत लिखा है, संस्कृत के साथ हिंदी लिखा है। तो अगर किसी को भी कोई भी डिटेल में जाना है तो आप आमंत्रित हैं, हमसे आके पूछिए कौन सा श्लोक है, और हम आपको कौन सा अध्याय और कौन सा श्लोक है वो बता देंगे। क्योंकि हर बारी वो करना, पढ़ना इतने छोटे समय में संभव नहीं होता है। सो वी आर ट्राइंग टू कंडेंस इट, लाइक स्वामी जी सेड, सॉरी वी रन अ लिटिल ओवर, बिकॉज इनके हृदय में, हम सबके हृदय में बहुत करुणा है कि हम कैसे जो जो हमें पता है वो आपको भी मिले, कैसे हम सब मुक्त हों। हम अकेले मुक्त होकर क्या करेंगे? आप सबके साथ, हम सब में वो शक्ति है, तो वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो जो भी हम चाहे श्लोक पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, जहाँ जहाँ हमें प्रेरणा होता है और श्लोक का बहुत शक्ति है तो वो हम बोल देंगे, वरना बाकी ये सब संस्कृत में ही लिखा हुआ और उसका हम जो आपको व्यास उच्चिष्ट करके समझाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। दूसरा एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भूल जाते हैं कभी कभी कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है। अंदर वो हमारे किस रूप में है? अंतर्यामी रूप में। तुम अंतर्यामी ओम जय जगदीश हरे। अंतर्यामी मतलब हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर उनका वास है। ये मजाक नहीं है, वास्तव में है। गॉड इज देयर, दैट्स व्हाट why we walk, talk, eat, do everything। तो वो आत्मा के रूप में विद्यमान है। उसको आप कॉन्शियसनेस बोल दीजिए, एनर्जी बोल दीजिए, साइंटिफिक टर्म्स ले आइए, इट डजंट मैटर, बट उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। जैसे ही प्राण चले जाते हैं, वी आर गॉन, वी आर डन। सो दैट इज द अंतर्यामी, आत्मज्ञानी अंतर्दृष्टि। और वहां से क्या होता है? वाई डू वी ऑलवेज से मेडिटेट, गो विद इन, गो विद इन। और जब ये सत्वा रहता है वो स्वाभाविक हो जाता है। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर गोइंग विद इन, बिकॉज द एनवायरनमेंट इटसेल्फ बिकम्स हाईली चार्ज्ड। उस वातावरण में ही इतना आनंद आता है, रस आता है कि खुद ही आपको ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मगन हो जाते हैं। तो वो जो है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आफ्टर ऑल व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष इज नॉट कमिंग बैक टू दिस मृत्यु लोक अगेन। इतना ही ना कि हम दोबारा यहाँ पर नहीं पधारें और कैसे हम क्या क्या काम करें। तो ये सब भागवत में एक एक चीज का वर्णन है। इसको अच्छी तरह से पढ़ने में तो कई वर्ष लग जाएंगे, many years, बट इवन समझाने में भी। तो हम
इतने समय में जितना बनता पड़ता है छोटी छोटी कथा लेके हम सब जाते हैं, ताकि प्रियानंदा जी का फेवरेट अप्लाई इट इन अवर लाइव्स, थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई इट इन अवर लाइव्स वो हम कर लें तो बस 100 चीज का एक चीज इतना ही है कि भगवान को अपने अंदर महसूस करें, एक बात। दूसरा बात क्या है कि वो बाहर भी है, भगवान बाहर भी है। बाहर किस रूप में है? काल रूप में। काल रूप में, काल मीनिंग द लॉर्ड ऑफ डेथ, बिकॉज वी आर, कल ही आपको बताया था हाउ आवर बॉडी चेंजेस, देन वी ग्रो ओल्ड, देन वी डाई, नोबडी कैन अवॉइड इट, वेदर राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये नियम है। We cannot change the laws just because we don't like them. They're there. Whether we like them or not, हमको उनका पालन करना है। तो बाहर जो हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अगर हम विषयों के पीछे भागेंगे, देखो कितना सुंदर विष, पहला ही वर्ड आता है विषय में, विष, विष मीन्स पॉइजन, लेकिन देखने में बड़े सुंदर लगते हैं विषय, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर चीज़ें, उनके पीछे हम भागते हैं, लेकिन अंत में हम जैसे चूहा जाता है और पकड़ा जाता है, जैसे बिल्ली, वो तो इसी तरीके से हम भी विषयों के पीछे जाते हैं और लोलुप हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष काल से जन्म मरण रूप प्राप्त करते हैं। दोनों भगवान के रूप हैं, बाहर काल है, अंदर अंतर्यामी रूप है। आप अगर अंदर जाएंगे तो मुक्ति पा सकेंगे, बाहर रहेंगे तो जन्म मृत्यु पा सकेंगे। होगा ही, बाहर मेहनत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट स्टे स्टेडी, वीड्स विल ग्रो ऑन देयर ओन, यू विल ऑटोमेटिकली रन आफ्टर द थिंग्स एंड द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पूजा, इतना तप, इतना बड़ा बड़ा सप्ताह पारायण करने की, तपस्या करने की, अंदर जाने की कोई जरूरत। उसमें फिर ये है कि another ship, another ship, another ship, keep on going। तो लेकिन इफ यू आर इन अ हरी, गॉड, ये मानव देह अति दुर्लभ, बड़ भागी मानव तन पावा। बड़ भागी, कितने बड़ भागी हैं कि ये हमको मिल गया। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कोई हाथी, वृक्ष, चींटी, कुछ नहीं बने, कौन बन गए? मनुष्य। और ये पहले थे, करते 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 एवोल्यूशन। आप डार्विन का थ्योरी भी पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ही बोलता है। तो हम, लेकिन इस एवोल्यूशन से वी हैव कम हियर, देयरफॉर वी हैव इंटेलेक्ट। इस इंटेलेक्ट से हम मार्स पे चले जाते हैं, मून पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही डिस्ट्रक्शन भी चल रहा है, वॉर्स भी हो रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, सब चल रहा है साइमल्टेनियसली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम इस बात को समझें कि ये काल बाहर है और भगवान अंदर है। कण कण में है साईं, रमता कटुक वचन मत बोल रे। भगवान सब में है। Even in a scorpion there is God, because it's that anything that moves and creates consciousness, उसमें भगवान का शक्ति। तो ये समझना आवश्यक है। तो आज चलते हैं हम वसुदेव जी के और देवकी के विवाह के बाद कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि समय का अपना परिधि है। हम तो जब भाव में आते हैं तो दिल करता है ये वेदांत का ज्ञान आपको देते रहें, क्योंकि कहानियां तो अच्छी हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना शरीर का और मन का और बुद्धि का और हमारे व्यक्तित्व का कल्याण होना। दैट इज़ द मेन थिंग। ये कहानियां, ये जो मेटाफोर्स हैं, हमको रीइंफोर्स करते हैं कि व्हाट वी शुड डू। तो वसुदेव कृष्ण जी के पिताजी हैं, वासुदेव भगवान कृष्ण हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब आप वासुदेवाय बोलते हैं तो वो भगवान कृष्ण हैं और उनके पिताजी का नाम है वसुदेव। और ये वसुदेव और देवकी उनकी माता जी हैं। तो इनकी कहानी हम पढ़ेंगे ताकि हम ये पहले समझें कि इनका जन्म कैसे हुआ भगवान कृष्ण का, और फिर आगे उनकी कैसे जीवन आगे बढ़ा। और फिर जब जन्म होगा तब हम आनंद लेकर थोड़ा सब लोग झूला झुलाएंगे, उसका आनंद लेंगे। और सोनू जी जो इतना तप करके यहाँ आए हैं हमारे साथ, हमको सुंदर सुंदर भजन भी सुनाएंगे। तो वसुदेव जी और देवकी जी ये वहाँ पर मथुरा चलते हैं। मथुरा शब्द पहले होता था मधुरा, मधुर मतलब मीठा, शहद जैसे मधुर होता है, स्वीट, मधुर। तो ऐसे वहां से बोलते बोलते मथुरा बन गया। लेकिन ये खूब बड़े बड़े वहां पर राजा थे। उग्रसेन उनके कंस के पिताजी थे और शूरसेन
वासुदेव के पिताजी थे। तो ये यदुवंशी थे, यादव्स। भगवान कृष्ण भी यदुवंशी ही थे, ग्वाले जो दूध गाय इत्यादि का काम करते हैं, और उसमें ये इनके दूसरे तीसरे राज इत्यादि भी करते थे। तो मथुरापुरी में रहने वाले ये शासन था। और कंस जो उग्रसेन का बेटा था, वो उसकी एक बहन थी, उसका नाम था देवकी। देवकी बहुत पवित्र और अच्छी स्त्री थी, मतलब कन्या थी, अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। शी वॉज नॉट येट मैरिड। तो उसका फिर विवाह सेट हुआ किनके साथ? वसुदेव जी के साथ। कृष्ण के माता पिता की बात हो रही है। तो जब वो हुआ तो खूब अच्छे से विवाह किया गया, इतना अच्छा विवाह। और कंस अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। ही यूज्ड टू लाइक हर वेरी मच। उसकी कजन थी वैसे, कजन सिस्टर, बट वेरी वेरी उसको मोह था। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा रथ, जैसे डोली चढ़ाते हैं उस समय, बोला मैं रथ तुम्हारा खुद हाँकूंगा। और इतने रथ साथ में भी गए थे, काफी सारे रथ साथ में गए, लेकिन बोला मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगा, हाँकूंगा। तो रथ हाँक रहा है। तो उस समय विदाई के समय देवकी के पिताजी भी, देवक, वो भी एक राजा थे, और इतने बड़े राजा नहीं थे, फिर भी उन्होंने क्या क्या दिया आपको हम बता दें, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं ये जो क्या वैभव है, इन लोगों का वैभव देखिए। 400 हाथी सोने के हार के साथ, हाथियों पर पहले सोने के हार डाले गए, और एक नहीं दो नहीं 400 एलिफेंट्स। जस्ट इमेजिन, एक हाथी को पालने में कितना मेहनत लगता होगा। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 15,000 घोड़े, क्योंकि उस समय यही वेल्थ की ऑपुलेंस मानी जाती थी। आजकल डायमंड्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो उस समय ये 1800 रथ और 200 बहुत अच्छी अच्छी सेविकाएं कि आपका काम करें। ये जो मेरी बेटी साथ जा रही है, शी शुड हैव इनफ डोमेस्टिक हेल्प। 200 इस तरीके से उन्होंने उनको विदा किया, बहुत प्यार से विदा किया, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे का जब करता है हृदय से करता ही है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, इट इज बट नेचुरल। तो अब वो कंस रथ चला रहे हैं, और वहां से आकाशवाणी हो जाती है, डिवाइन प्लान कॉलिंग, कि जिस रथ को तू चला रहा है कंस, क्योंकि कंस पापी है, वो काफी गलत मलत, और देखेंगे उसने अपने बाप को भी उठाकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया, जैसे औरंगजेब ने किया था अपने पिता के साथ। ताजमहल बोलता था देखो सिर्फ, बस। और ऐसे ही यहां हुआ। तो कंस को जब आकाशवाणी हुई, हे कंस, ये जो जिस दंपत्ति को तो ले जा रहा है, ये देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बढ़ेगा। नाउ ही सेज आई लव माय सिस्टर वेरी मच। कितना बोल रहा है, आई विल डू दिस, अपना ईगो वीगो सब छोड़ के रथ चलाने के लिए नीचे आ गया। बट द मिनट ही हर्ड दैट अनाउंसमेंट, ही गॉट सो स्कैर्ड। झट से पहला रिएक्शन क्या हुआ, तलवार निकल गई बाहर, बहुत जोर से तलवार खींची और बोला तुम्हें काट के अब हम खत्म करें। मतलब ही वॉज गेटिंग रेडी टू किल हिज ओन सिस्टर। सोचिए कितना दुख का बात है। तो फिर वसुदेव जी बहुत समझदार थे, उनके कृष्ण के पिताजी, हिज फादर। तो अभी तो शादी हुआ है दोनों का, तो वो he is trying to think how should I save this newly married and what should I do to save her life। तो उसको बोले देखो कंस, ये स्त्री है, नव विवाहिता है और तुम्हारी बहन है। First of all, she is a woman, weak. Then she is newly married. Third, she is your sister. You do something bad like that, it is going to give disgrace to you. तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, लोग तुम पे थूकेंगे कि तुम इतने बड़े राजा और कितना नीच काम कर दिया। अच्छा, वो फिर भी नहीं समझ रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। When your time is not good, you will not think straight. तुम अच्छे को भी बुरा ही समझोगे। तो अब वसुदेव जी ने सोचा ये नहीं मानता है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको बोला अब तो प्राणों पे बना ही है। तो बोले देखो उस समय बुद्धि का ठीक चलना, ड्यूरिंग डेंजर, व्हेन यू आर सपोज वी लूज आवर वॉलेट ऑल ऑफ अ सडन इन द एयरपोर्ट, आवर पासपोर्ट इज गॉन, व्हाट वुड यू डू?
वी पैनिक, isn't it? फर्स्ट रिएक्शन पैनिक का है, उसके बाद धीरे धीरे समझ आएगा कि अच्छा ये करो वो करो वो करो। तो ऐसे ही कंस पैनिक किया और उनको मारने का फिर, लेकिन वसुदेव जी पैनिक नहीं किए। उनको तलवार सामने है बीवी का, अभी 1 मिनट में गर्दन हट जाएगा, फिर भी इतना बुद्धि कि उन्होंने उसको बोला कि देखो कंस, मैंने तुमको बताया है, फिर भी तुम ये करना चाहते हो तो तुम जानते हो मैं सत्य बोलता हूँ। वसुदेव जी would give his life for truth, सत्यमेव जयते, सत्संग, जहां पर भी सत्य रहता है वहां पर कल्याण ही कल्याण है। देर है, भगवान के बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, देर तो है। सो देन दिस इज व्हाट ही सेड, लुक ओके, सो अगर तुमने कुछ करना ही है तो आकाशवाणी क्या हुई है कि इसका 8वां गर्भ तुमको तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुमको मारेगा। तो इसने तो नहीं हो तुमने मारना ना, तुम्हारी बहन, शी इज, डोंट डू दैट, लीव हर अलोन, आई विल माई सेल्फ ब्रिंग एवरी चाइल्ड टू यू। अब सोचो कितनी बड़ी विपदा है कि बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है, माँ और पिता को खुद अपने बच्चे को लाना पड़ रहा है कंस के पास कि इसका वध कर दो। बट अच्छा ऐसा ही हुआ तो कंस समझ गया, उसने कहा हाँ ठीक तो है, आकाशवाणी तो यही बोल रही है, दैट्स व्हाट्स बीइंग सेड, सो दैट लॉजिक वर्क फॉर हिज थिक ब्रेन। छोड़ दिया, किसी तरीके से जान बची, अपने महल में आए शादी करा के बेचारे। अब पहला बच्चा हुआ, वसुदेव जी लेके चल के कंस के महल में पहुंच गए। इट वाज, इमेजिन हाउ हार्ड इट मस्ट हैव बीन फॉर द मदर टू लेट गो ऑफ हर चाइल्ड नोइंग ही विल नॉट सर्वाइव, एंड फॉर द फादर टू हैव टू टेक इट। तो जब हमको कष्ट आता है, आप कंपेयर करके देखना कि हमारा कष्ट कितना है। इज इट दैट मच और इज इट जस्ट माइक्रोस्कोपिक? हम छोटे छोटे चीज़ों को भी, बात का बतंगड़ बनाना हम लोगों को बहुत अच्छा आ गया है कलयुग में, थोड़े थोड़े कंफर्ट्स के साथ। बट वहां पर देखो क्या हो रहा है, एंड दे आर किंग्स, इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव एफ्लुएंस, दे हैव इनफ ऑप्युलेंस, सब कुछ है। उसके बाद भी जब वो देने गया तो कंस बोला अच्छा ठीक, शाबाश तुम ले आए, मतलब अपनी बात का पक्का है, अपने बच्चे को ले आया। तो उस समय अच्छे मूड में बैठा हुआ था कंस, बोला कि देखो होना तो 8वां बच्चा है, द 8th वन इज सपोज टू किल मी, नॉट द फर्स्ट वन, तो तुम इसको घर ले जाओ, कोई बात नहीं। छोड़ दिया। अब वसुदेव जी बहुत खुश भी हुए कि अरे जान बच गई है, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं ज्यादा हुए, क्योंकि उनको पता था ये जो धोखेबाज इंसान है, ये गलत इंसान है, कभी भी अपना माइंड बदल सकता है। अच्छा हुआ भी यही कि उस समय क्या हुआ, अच्छा डिवाइन प्लान में क्या है, नारद जी पहुंच गए कंस के पास कि कंस देखो ये जो है यदुवंशी हैं, और ये जो वहाँ पर नंद बाबा हैं या ये सब हैं, और ये यदुवंशी, ये सब देवता हैं, देवता के रूप में, भगवान के रूप में आए हैं, और ये सब ही तुम्हारा वध करेंगे। अच्छा नारद जी ने ऐसे कहा, आप लोग तो बोलेंगे हाउ मीन ऑफ नारद, व्हाई डिड ही डू दैट, कितना गलत, अच्छा भला वो बच रहे थे। लेकिन आपको भगवान की दृष्टि से देखना है, हमारी अपनी पर्सनल सेल्फिश रीजन से कि ओ पुआ बेबी ऐसे वैसे नहीं देखना है, ये ऐसे देखना है कि पूरा ब्रह्मांड कैसे चलेगा, और भगवान ने क्या करना है, कंस का पाप का घड़ा भरना है। अगर धीरे धीरे ही वो करेगा तो नारद जी उस भावना से कि लेट स्पीड अप द प्रोसेस, क्योंकि वहां पर डिले हो रहा है, जैसे हम स्पीड अप करते हैं, अच्छा समय हो रहा है स्पीड अप करो, तो वी ट्राई टू, बट उतना ही है ना, यू कैन डू ओनली सो मच, आफ्टर दैट इट स्पिल्स ओवर। तो इस तरीके से ही जब वो गए, क्या करें अब कंस, तो वो चलने लगे, और इस तरीके से पहला बच्चा जो है कंस ने नहीं माना और उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि उसको अब समझ आ गई कि देवता लोग हैं। तो He changed his mind, उनको उनके ऊपर पहरा लगा के उनको कारागार में बंद कर दिया। अपनी बहन को, जिसको बोलता था तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो कौन प्यार करता है किसको, जब अपनी जान पे बन आती है तो क्या है, who is there? तो that's what ended up happening. He says my life, I love you but not so much, now I'm ready to kill you honey। हाँ ऐसे ही। तो ये जब हुआ तो उसके बाद वसुदेव और देवकी कारागार में रहे
तो थोड़ा इसको हम बढ़ाते हैं कथा को, 1 2 3 4 5 6 करके एक एक बच्चे को कंस ने मार दिया कि देयर शुड बी नोबडी ऑफ देवकी बिकॉज दैट ट्रूथ इज देयर। वो जो बोला है, आकाशवाणी हुई है, वो गलत नहीं होगी। तो इस भावना से उन्होंने अब ये करा। तो 7वां बच्चे का समय आया। अब जब 7वें बच्चे का समय आया तो क्या हुआ, भगवान ने खुद, नारायण भगवान ने खुद आदेश दिया। अभी वो आए नहीं हैं धरती पर, तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम योग माया को, कि तुम जाओ और ये जो गर्भ है देवकी का, यहाँ से बच्चे को निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दो। साइंस कैन नॉट डू दिस येट, राइट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वूम्ब from one body to another without any interaction। अभी जैसे डेटा क्लाउड तो वहां से बच्चा निकला और उसका भ्रूण उसके अंदर जा गया। किसके अंदर? रोहिणी। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। कहाँ रहती है? गोकुल में। गोकुल में कहाँ? जहाँ नंद जी हैं। तो नंद जी के साथ रहती है एंड शी वुड कम एंड फ्रीक्वेंटली। और वो देवकी जी को अपनी बहन ही मानती थी, दूसरी पत्नी थी लेकिन बहन की तरह ही ट्रीट करती थी और बहुत अच्छे से वहाँ उनको मिलने आती थी कारागार में, इन द प्रिजन। और आपको हम ये भी बता दें, क्योंकि ये जो भागवत है, ये जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ है मथुरा में, मथुरा के कारागार में, वहाँ पर कुछ हमारा भागवतम का यज्ञ चल रहा था। स्वामी जी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट पूरे भारत में। तो ये हम लेकर गए थे और ये भागवतम वहाँ पर जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ है उस स्थान पर पंडित जी ने रखा और सबको, इतना भीड़ की सबको भगा रहे हैं कि कोई 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। और हमें बोले आप इसको यहाँ रखो और आनंद से प्रणाम करो। तो कौन सी शक्ति है जो ऐसे हुआ? वो वाला भागवतम है। तो वह जहां कृष्ण का जन्म हुआ है उस कारागार में, मथुरा में हम सब घूमने गए थे, तो वो सब हमने देखा है। तो हम आपको जो बताते हैं, वी हैव आल्सो बीन फिजिकली, वी हैव सीन दोस प्लेसेस, सो दीज आर नॉट जस्ट स्टोरीज, ये सत्य है। अभी हम पूरा रामायण यात्रा करेंगे। वहीं से ये बाय किया एक बार, दूसरा बार लेके गए, फिर 2 वॉल्यूम्स है ये, हम एक ही लाए हैं। दूसरा बार फिर वहीं पर चरण में जहाँ पैदा हुए वहाँ पंडित जी ने रखे। तो इतना सुंदर भगवान का कृपा है, नॉट ओनली हम सब पर, आप सब पर भी। हम क्यों बताते हैं? ताकि अगर आपका उसको छूने का दिल करे या कुछ उसमें भावना प्रार्थना करने का दिल करे, तो एक तो भगवान वैसे ही इसमें है, ऊपर से वहीं उनके जन्म स्थान से आई हुई वस्तु है, तो ये पवित्र है, बहुत पवित्र है। तो इस तरीके से ये छठा जो था वो ट्रांसप्लांट हो गया और रोहिणी गर्भवती हो गई। अब रोहिणी को बहुत स्ट्रेस हुआ कि ये मैं गर्भवती कैसे हो गई, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो जेल में है वसुदेव जी। तो उन्होंने बोला, फिर ऐसे कृष्ण ने बताया कि तुम उनको मिलने जाओ और बोलो कि अपना वसुदेव जी को मिल के आए हैं, तो वहां से गर्भ हुआ। तो कैसे कैसे करते हुए हो गया। अब ये गर्भ कौन है? 7वां। और वहां बता दिया कंस को कि हमारा मिसकैरेज हो गया, 7th। कंस बड़ा परेशान, ये कैसे हो गया भगवान ऐसे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। तो अब और उधर बलराम जी आ गए। किसकी तैयारी हो रही है? भगवान कृष्ण के आने की। तो पहले कौन आ गए? बलराम। क्यों? क्योंकि त्रेता में तो वो छोटे भैया थे, लक्ष्मण थे, और बड़े भाई थे राम। और जब हिरण को लेने जाना था, वो लक्ष्मण को बोल के गए थे कि तुम हिलना नहीं यहाँ से, और हिलाया सीता माता ने। और वो बोले, भगवान अगली बारी में छोटा भाई तो बनने से रहा, क्योंकि आपकी सब बात मेरे को माननी पड़ती थी, अब मैं बड़ा बनूंगा इससे बारी। तो भगवान ने कहा अच्छा महाराज, शेषनाग हैं, शेष इसको उनको अनंत संकर्षण भी बोलते हैं, क्योंकि वो वूम से एक्सट्रैक्ट हुए थे और वहां उसके वूम में गए थे रोहिणी के। तो आपको ये बताते हैं कि उसके बाद बलराम जी, उनको राम जी भी बोलते हैं, बलराम जी भी बोलते हैं, संकर्षण जी भी बोलते हैं। तो बोलिए बलराम जी की जय। तो बलराम जी तो आ गए स्वागत करने के लिए। अब 8वां जो बच्चा होना था वो खुद भगवान कृष्ण। तो अब 8वां जो ये, इसमें तो बहुत लंबा संदर्भ है, लेकिन बड़े आनंद से उन्होंने इसका विस्तार किया है कि जब वो हुआ तो
अब वो तैयारी हो रही है कि भगवान आएंगे। तो उन्होंने पहले योग माया, वही योग माया जिसने इनको हटाकर, किनको, उसके गर्भ से, देवकी के गर्भ से हटाकर जहां पर भ्रूण डाला था, थ्रू हर मैजिकल पावर, अदरवाइज हाउ कुड दीज थिंग्स हैपन। तो ये जो भगवान की शक्ति है, ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो माया है, वो माया से चलती है, इसीलिए उसको योग माया बोले भगवान। तो भगवान ने इस तरीके से उसका आगे बात किया, उसको, कथा को उन्होंने आगे बढ़ाते हैं कि फिर भगवान अब आने को तैयार हुए तो उन्होंने बोला, फिर योग माया को बुलाया कि देखो अब तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या? बोले देखो तुम अब जाकर क्या करोगी, उसके गर्भ में जाओ। किसके गर्भ में? माँ यशोदा के गर्भ में। यशोदा एंड नंद जी, जो नंद गांव जिसको गोकुल बोला जाता है, नंद गांव, और राधा जी बरसाने की थी, पास थोड़ा ही डिस्टेंस था। तो यहाँ नंद गांव में तुम जाओ और उनके गर्भ में चली जाओ। गो एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द वूम्ब ऑफ माँ यशोदा। एंड लॉर्ड सेड, आई विल कम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट इट विल बी फर्स्ट यू गो। मतलब हम दोनों उसी समय पैदा होंगे, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि बच्चों का एक्सचेंज होगा। तो भगवान बोले कि देखो अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। समस्त ज्ञान बल मतलब ही हैज टू कम एज गॉड एंड डू डिफरेंट थिंग्स। जब भगवान इस धरती पर आते हैं, उनकी हमारी तरह हड्डी, मांस, पेशी, खून इत्यादि नहीं रहता है, करते वो लीला हैं। दे आर डूइंग ऑल दीज लीलास फॉर यू एंड मी, बट उनके अंदर जो भगवत, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, वही इस धरती पर भी आए हैं। मतलब पूरी क्षमता है, omnipotent, omnipresent, omniscient, which means he can become anything, he can do anything, he has all the power. तो नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में जन्म लेना, फिर बोले तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने के समर्थ हो जाओगी। किसकी बात हो रही है? देवी माँ की। जो लोग देवी माता की पूजा करते हैं, चाहे लक्ष्मी है, चाहे सरस्वती है, चाहे दुर्गा है, चाहे काली है, भद्रकाली, किसी भी तरीके से, तो इन्होंने खुश होकर उनको ये वरदान दिया माँ को कि तुम जो भी तुमसे कोई कुछ मांगेगा, यू विल हैव द एबिलिटी टू गिव, वरदान पूरे करोगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकारी, धूप, दीप, नैवेद्य, अन्न, सब सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। अब इसीलिए कितनी पूजाएं होती हैं, लेकिन नवरात्रे 4 आते हैं, 9 दिन के। 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं। अक्टूबर वाला मेन रहता है और फिर एक आता है बीच में, और 2 गुप्त नवरात्रि भी रहता है। तो जो असली देवी भक्त हैं वो चारों ही रखते हैं। उस समय शुद्ध भोजन इत्यादि करके माँ की पूजा करते हैं। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे, और क्या क्या नाम देंगे? दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। क्योंकि भगवान कुछ भी किसी से ऐसे ही नहीं कराते, बहुत 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 कुछ देते हैं। तो जब आप हम अपना एक फल लेके जाते हैं, सुदामा एक छोटा सा तंडुल लेके गया था, और क्या मिल गया? सुदामा नगर। वापस आया तो महल के महल बने हुए हैं। तो भगवान जो है बहुत कृपा करते हैं सब पर। तो इसी प्रकार उन्होंने इस पर भी बहुत योग माया पर कृपा किया, और खुद वो चले गए उसकी गर्भ में। किसके? अपनी माता देवकी के गर्भ में। एंड नाउ व्हेन ही वेंट देयर, ऑल द सेलिब्रेशन स्टार्टेड। उधर से देवता, दूसरे तीसरे सब लोग बहुत एक्साइटेड कि अरे भगवान 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 आ रहे हैं। तो भगवान के लिए वेलकमिंग हो रहा है वूम्ब में, अभी बाहर नहीं आए हैं, वूम्ब में। हम लोग भी करते हैं ना बेबी शावर, 7th मंथ बेबी शावर, अभी बाहर नहीं निकला, ओके बेबी, है ना, सब करते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेम थिंग। तो उस समय ब्रह्मा जी और ये रुद्र जी, इंद्र, सब गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सब के सब नीचे आकर उन्होंने प्रणाम किया, और देवकी और वसुदेव को तो दिखाई भी दिए।
they could see them, and they were so amazed. Ki, what is this? They said, well, our God is coming. We are here, and you are the lucky carrier of our God. तो इस तरीके से उन्होंने उसका अभिनंदन किया और खूब आनंद से भगवान अंदर। अब कंस मारने आया। कंस को पता चल गया कि 8वां बच्चा है। अब वो जब वो मारने आया तो भगवान के अंदर जब वो गर्भ देखा तो भगवान की शक्ति ने उसकी उल्टी बुद्धि को भी उस समय के लिए भ्रमित कर दिया। उसको यही लगा कि ये स्त्री है, ऊपर से गर्भवती है, ऊपर से मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर, प्रेग्नेंट, एंड इफ आई डू दिस मैं तो नरकों के लायक भी नहीं रहूंगा। और निंदा कितनी होगी कि इतने बड़े उसकी अपना वध कर दिया ऐसे, और औरत का बच्चा भी नहीं होने से पहले। तो उसने कहा अच्छा जब बच्चा हो जाएगा उसका वध करूंगा, इसका तो नहीं करता। सो ऑटोमेटिकली इवन ही स्टार्टेड गेटिंग प्योर थॉट्स। व्हाई? बिकॉज द वूम्ब वाज हैविंग द इफेक्ट। इतने गलत इंसान का भी बुद्धि सीधा होना शुरू हो गया क्योंकि भगवान की रेडिएशन आ रही थी। इसीलिए सत्वा में भगवान का बहुत कृपा होता है। तो चलिए एक भजन हम सुने, उसके बाद हम आगे भगवान कृष्ण का जन्म करके फिर उनको आमंत्रित करेंगे। भगवती 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 माँ भगवती 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 माँ भगवती भगवती भगवान की भक्ति करो परवान। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान। अंत कर दो अमर जिससे, अंत कर दो
की जय। ये कथा शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। तो आगे बोलते हैं कि अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। समस्त शुभ गुण मीन्स एवरीथिंग स्टार्ट्स बिकमिंग ऑस्पिशियस। भद्रम करणे भी शृणुयाम देव, एवरीथिंग बिकम्स ऑस्पिशियस, नाइस। रोहिणी नक्षत्र था उस समय। आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो गए। एवरीबडी वॉज वेलकमिंग गॉड। जैसे आप लोग भागवतम करने के लिए कितना कब से तैयारी कर रहे होंगे, कितना मेहनत, ऐसे ही वहां पर भी बहुत पूरी प्रकृति, होल ऑफ नेचर, क्योंकि वो भूदेवी के पति आ रहे हैं, धरती माता के दूसरे, लक्ष्मी जी और भूदेवी उनकी दो पत्नियां हैं। तो इतनी देर के बाद वो कितनी एक्साइटेड थी धरती माता कि सब फूल खिलने शुरू हो गए, अच्छा अच्छा आनंद आना शुरू हो गया। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। ऑल द डायरेक्शंस बिकेम फुल ऑफ एनर्जी। निर्मल आकाश में तारे जगमगाने लगे रहे थे, ब्यूटीफुल, एकदम स्पार्कलिंग। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और सब खाने अपने आप को प्रकट करने लगी, मंगलमय होने लगा। मतलब भगवान का वेलकम का तैयारी हो रहा है। आफ्टर ऑल गॉड इज कमिंग। नदियों का जल निर्मल हो रहा है। रात्रि का समय भी सरोवर में कमल खिल रहे हैं। सोचो कितना अजीब बात हुआ, रात्रि का समय और कमल खिल रहे हैं। तो नॉर्मली तो दिन में खिलते हैं, तो ऐसा सब शुभ संकेत आने लगा। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। एवरीवेयर, कहीं कहीं पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। हर एक किसी में जो सामर्थ्य है वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे हम ये कथा करते हैं, सोनू जी एक मंडली आपको ये भजन सुना रहे हैं, भगवान के लिए जब करो उसमें एक अलग आनंद आता है। भगवान की कृपा, और फिर उसकी कृपा से वो रस हमारे अंदर और भी बढ़ता है। ऐसे ही पूरे प्रकृति में नेचर, एवरीथिंग वाज बिकमिंग प्यूरिफाइड, शुद्धिकरण। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दे रही थी। जैसे चंदन का स्मेल आ रहा है, जैस्मिन का, ऐसा फीलिंग था सब जगह। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की अग्नियां जो कंस ने बुझा रखी थी, रिमेंबर ही इज अ डिक्टेटर, बहुत दुख दे रखा था, सडनली जलनी शुरू हो गई अग्निहोत्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। संत पुरुष बहुत आनंद में उसका अनुभव करने लगे। अभी प्राकट्य नहीं हुआ है, प्राकट्य होने की तैयारी हो रही है पूर्ण। तो स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। अब भगवान बाहर आते हैं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। सब लोगों ने भगवान का इतना आनंद के साथ स्वागत किया। लेकिन भगवान जब वो पैदा हुए तो वो छोटे बच्चे की तरह पैदा नहीं हुए। कैसे पैदा हुए? बाहर आकर वो विष्णु अवतार के रूप में बड़े हुए। जैसे छोटा एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। वासुदेव और माँ देख रही हैं कि ये क्या हुआ, तो उसमें से वो पूरा उनके अंदर गोल्ड और हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। प्राकट्य हुआ था, भगवान का प्राकट्य होता है, वो जन्म थोड़ा ही लेते हैं। वूम्ब तो लीला है कि वो हमने करके दिखाना है दुनिया के लिए कि उदाहरण बनना है, बट वैसे तो उनका प्राकट्य होता है। तो 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा जैसे उदय हो जाता है, इससे वो रात के 12 बजे, रात्रि के समय, पूर्ण उस समय रोहिणी नक्षत्र, और इस तरीके से वो आए, इस धरती पर आ गए। प्रकट होने से उनके कमल नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल। सोचिए, हम अगर भगवान की मूर्ति देखते हैं हमें इतना आनंद आता है, सपोज वास्तव में भगवान खड़े हो, उनके लिए तो ऐसे ही वास्तव में। और 4 सुंदर हाथों में उनके शंख गदा चक्र पद्म कमल, और वक्षस्थल पे श्रीवत्स का चिन्ह रहता है। श्रीवत्स कौन है? भृगु जी ने उनको वो चिन्ह दिया था, वो एक अलग कथा है, लेकिन वो हमेशा उसको धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि भी उनकी झिलमिला रही थी।
बहुत उसको प्यार करते हैं कौस्तुभ मणि को। इस तरीके से वो अपनी अच्छी अच्छी चीजें, पीताम्बर फहरा रहा था और मुकुट, पूरी आनंद से जो हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन इन लाइफ। तो कांति से सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे थे भगवान के, और इन सब आभूषणों से सुशोभित होकर बालक के अंग अंग अनोखी छटा की तरह छा रही थी। वसुदेव जी भी देख रहे थे कि मेरे पुत्र के रूप में तो ये स्वयं भगवान ही आ गए, और भगवान का ही दर्शन वो कर रहे हैं। So he knows he is not imagining, ये वास्तविक है। उन्होंने देखा, और बाद में भगवान बताएंगे भी कि देखो मैंने भगवान का रूप क्यों लिया है, मैंने इसलिए लिया है, वो एक कथा है। लेकिन उसके बाद हम अभी पहले ये आनंद कर लें, भगवान का स्वागत कर लें, उसके बाद हम उस कथा की ओर भी बढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। लेकिन भगवान जब आए, उनकी आंखें खिल उठी, किनकी? वसुदेव जी की और माता की। माता ने देखा कि अरे ये